हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन occurs in solution phase. So today we will discuss reaction in solution phase, means how we will define the amount of solute in solution or amount of a substance in solution. You already know that solution have two components. The component which present in larger amount is known as solvent. The component which present in lesser amount is known as solute. For example, if I mix some sugar in water, then water is our solvent and sugar is our solute. Okay, तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो क्या होता है हमारा solvent, और जिसका अमाउंट कम होता है वो क्या होता है solute होता है. तो first we will discuss the how we can define the amount of solute or amount of component in solution. First term is mass percent, or you can say mass by mass percent, or you can say weight by weight percent. It is simple percent. How we will calculate the percentage? ना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करता है, जिसका करना है वो ऊपर डिवाइड बाय टोटल इनटू 100. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक एग्जांपल, वी हैव ए सॉल्यूशन इन विच 15 ग्राम वाटर एंड 5 ग्राम sugar is present. Okay, 15 gram water is present and 5 gram sugar is present. If someone tell us that calculate the percentage of sugar, then how we will calculate? First we will calculate the total mass. Total mass of solution. Total mass of solution is 15 plus 5, that is 20 gram. Okay, then you have to calculate the percentage of sugar. So mass percent of sugar is mass of sugar is 5 gram divided by total mass, that is 20 gram into 100. You can solve 25 jar 100, 5 jar 25. तो क्या है आंसर 25%. और if you want to write the formula of mass percentage, you can write mass percent of component equal to mass of component present in solution divided by total mass of solution into 100. तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मास परसेंट कैलकुलेट कर देगा. मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. एंड इफ समवन आस्क मी दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर, ना व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ वाटर, हाउ वी विल कैलकुलेट 15 मास ऑफ वाटर इज 15 डिवाइड बाय टोटल मास 20 इनटू 100 ना. बट मैं ऐसा नहीं करता, क्यों, मुझे पता है ये कितना है 25%. तो सेकंड कितना होगा, वाटर कितना परसेंट होगा 75%, क्योंकि परसेंटेज का सम कितना होता है 100. स्टूडेंट, फॉर डिफाइन अमाउंट ऑफ कंपोनेंट आवर सेकंड टर्म इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्रैक्शन? आई थिंक यू स्टडी इन अर्लियर क्लासेस ना, इवन 4 or 5 6 क्लास यू स्टडी अबाउट फ्रैक्शन ना. इफ आई टेक एग्जांपल, if I tell you find the fraction of shaded part, how you will calculate? You will see how there is total 4 part in which one is shaded part, 1 divided by total part 4. Now, so your answer will be 1 by 4. If I will ask you what is the fraction of unshaded part, so unshaded part is 3 and total part is 4, means 3 by 4. And we know one thing, if you sum the whole fraction, you will get answer 1.
लाइक परसेंटेज का सम कितना होता है ऑलवेज 100 होता है, फ्रैक्शन का सम ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। तो आपने फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया, जिसका करना वो ऊपर डिवाइड बाय टोटल। इफ परसेंटेज करते तो क्या करते थे इनटू 100, यहां पे इनटू 100 नहीं करना, ओके, मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना है। तो लेट अस कंसीडर इट इज I have a solution in which we have two component A and component B. Mole of component A is represented by N and mole of component B is represented by N. And mole fraction is represented by small x. Okay. So if you have to find the mole fraction of A, mole fraction of A, mole fraction of A, how you will find? Mole of A divide by total mole. हम लोग यहाँ यही करते थे ना, जिसका फाइंड करना है ऊपर डिवाइड बाय टोटल। So if you have to find the mole fraction of A means mole of A divide by total mole Na plus Nb. And how you will find the mole? Mole is simply given mass divided by molar mass. Okay. If you have to find the mole fraction of B, mole fraction of B you can write as xB equal to mole of B divided by total mole Na plus Nb. Okay. और हमने आपको एक चीज बताई है क्या, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी 1 means XA plus XB always 1. इफ आपका सपोज एक मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड किया 0.2 है, तो सेकंड क्या होगा 0.8, क्योंकि सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इफ आपके पास 1 स्टार किया तो सेकंड के लिए आप क्या कर सकते हो 1 से माइनस कर सकते हो। इफ आपको प्रूफ करना है कि सम 1 होता है तो आप इनको सिंपली ऐड कर लीजिए, आपको आंसर 1 मिल जाएगा। ओके। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका जो सॉल्यूशन होगा उसमें 2 कंपोनेंट्स होगा, आपके सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है A B C, mole of A is denoted by Na, mole of B is denoted by Nb and mole of C is denoted by Nc. If you have to find the mole fraction of A, mole fraction of A equal to mole of A divided by total mole Na plus Nb plus Nc. Similarly, you can find the mole fraction of B, xB equal to Nb divided by Na plus Nb plus Nc. And you can also find the mole fraction of C, xC equal to mole of C means Nc divided by Na plus Nb plus Nc. Here you can write XA plus XB plus XC equal to 1. Okay. Or in general term you can write as summation of mole fraction will be 1. Students, our third term is molarity. Third term is molarity. And what do you understand by molarity? The moles of solute present in 1 liter solution, present in per liter solution is known as molarity. Means 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वो आपकी क्या है मोलैरिटी। ओके, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ओके, आप समझिए कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। सॉल्यूशन जो है उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, क्या क्या, सॉल्वेंट भी एंड आपका सोल्यूट। ओके, तो ये सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं मोलैरिटी। सपोज इफ मेरे पास 10 लीटर सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन है 10 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें 5 मोल सोल्यूट के प्रेजेंट, तो 1 लीटर में कितने प्रेजेंट होंगे 5 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0.5 मोल। यही हमारा क्या हो जाएगा मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हमने कैसे फाइंड किया, ये ऊपर क्या था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय क्या था
वॉल्यूम कैसे पुट करेंगे, लीटर। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, unit of moles will be simply mole and unit of volume is liter, means unit of molarity will be mole per liter or it is represented by capital। ओके, तो आप मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं एंड क्या लिख सकते हैं, कैपिटल। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इफ somewhere is molarity is given। Okay, suppose there is written 0.2 m NaCl solution। Okay, कहीं लिखा हुआ है 0.2 कैपिटल M NaCl solution। तो इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए molarity is the number of moles present in 1 liter solution। You will think like that, if we have 1 liter solution then moles of NaCl will be 0.2 mole। 0.2 m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स को प्रेजेंट है किसके, NaCl के। इफ सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो सॉल्वेंट वोल्टेज क्या होगा हमारा, वाटर होगा। ओके, सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए ये क्या है, मोल्स है किसके, NaCl के, इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन। स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस a question on molarity, so you will understand the concept of molarity। Calculate the molarity of NaOH in solution। What you have to calculate, molarity of NaOH in solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 500 ml solution। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आना चाहिए। आपने क्या किया है, एक इनफ वाटर लिया, उसमें NaOH का कितना मास डाला है, 4 ग्राम, और जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना है वो कितना है, 500 ml। ओके, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन एंड व्हाट इज गिवन, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH दैट इज 4 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is 500 ml। Okay, and now you have to calculate the molarity of NaOH। What is the formula of molarity of NaOH? Moles of solute divided by volume of solution in liter। You have to calculate the volume of solution in liter। How you will calculate, 500 into milli, milli means 10 to the power -3 liter, or either you can divide by 500 by 1000। Okay, you will get 0.5 liter। Okay, then what you require, moles of solute, and what is solute, solute क्या है यहाँ पे हमारा, NaOH। You require the moles of NaOH, and how we will calculate the molar mass, given mass divided by molar mass। So first we require the molar mass of NaOH, molar mass of NaOH। तो NaOH का मोलर मास क्या होगा, Na का मोलर मास कितना है, 23, ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन का मोलर मास 16 एंड 1 मोल हाइड्रोजन का मोलर मास 1। 23 plus 16 39 plus 1 40 and unit of molar mass is gram per mole। Okay, now we will calculate the moles of NaOH, given mass by molar mass। Given mass is 4 gram, molar mass is 40 gram। You will get 0.1 mole। Okay, now simply you will apply the formula of molarity na, molarity equal to moles of solute and solute
what is the unit of molarity? Either you can write mole per liter or either you can write capital. Okay. Students, our next term is molarity. Previous one was molarity. This one is molarity. Molarity. That was riti. Okay, R-I-T-Y. This is liti. Molarity. The moles of solute present in 1 kg solvent is known as molarity. Last time क्या था? प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन बोला था ना, 1 लीटर सॉल्यूशन में बोला था, यहां क्या बोला पर केजी सॉल्वेंट. ओके, मोलैरिटी द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट. लास्ट टाइम क्या था? सॉल्यूशन था, यहां पे क्या है? सॉल्वेंट. प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैरिटी. सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय पर केजी solvent, means mass of divided by mass of solvent, and remember mass of solvent will be in kg. ओके, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मोल्स की यूनिट क्या होगी? सिंपली मोल, एंड मास की यूनिट क्या होगी? केजी. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी, और मोल पर केजी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो हमने देखा था कि जो मोलैरिटी थी लास्ट टाइम, मोलैरिटी उसमें क्या था? यूनिट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? कैपिटल M से कर रहे थे. जबकि मोलैरिटी में हम किससे कर रहे हैं? स्मॉल m से कर रहे हैं. तो हम मोलैरिटी के एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. So students, our question is the density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molarity of the solution. Molarity of the solution. तो हम लोग गिवन के फर्स्ट हम लोग गिवन लिख लेते हैं. ओके, गिवन के मोलैरिटी गिवन है. ओके, आपको क्या गिवन है? मोलैरिटी. मोलैरिटी ऑफ NaCl solution is 3m, एंड क्या गिवन है आपको? सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml. ओके, तो हमने आपको मोलैरिटी को पढ़ना सिखाया था. मोलैरिटी का मीनिंग क्या? मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. मींस ये 3m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ हम लोग सपोज कर रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है, तो मोलैरिटी की मोल्स कितने हो जाएंगे? 3 मोल्स हो जाएंगे. समझे आप बात को? अच्छा, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? मोल्स चाहिए, मास चाहिए. तो आपके पास डेंसिटी है. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. इफ आपके पास वॉल्यूम हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? मास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए कैसे करेंगे. ठीक है, फर्स्ट हम लोग सपोज करेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1. और आपको ध्यान रखना है, यहाँ डेंसिटी में यूनिट क्या? मिलीलीटर. तो लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, देन मोल्स ऑफ NaCl will be 3 मोल. ओके, आपको समझ आ रहा है ना? मोलैरिटी इक्वल टू क्या था? मोल बाय वॉल्यूम. इफ आप वॉल्यूम को 1 पुट कर देंगे तो मोल इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगी. तो यहां हमने क्या किया? हमने वॉल्यूम 1 लीटर लिया, तो मोलैरिटी डायरेक्टली इसके इक्वल होगी मोल्स. देन हम लोग, हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. मींस मास इक्वल टू डेंसिटी टू वॉल्यूम. सो मास ऑफ सॉल्यूशन is density. Density that is 1.25 into volume. Volume is 1000 ml. ध्यान रखना, हमने ml क्यों पुट किया? क्योंकि डेंसिटी किसमें गिवन है?
ग्राम पर ml में, तो आपके पास मास आ जाएगा 1250 ग्राम। ओके, मास क्या आ गया आपका 1250 ग्राम। यहां तक ये मास किसका है, सॉल्यूशन का। ओके, और हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपके पास किसका मास है, सॉल्यूशन का, बट सॉल्यूशन में तो दोनों कंपोनेंट है ना, सॉल्वेंट भी है एंड सोल्यूट भी। तो हमको क्या चाहिए, हमको ओनली सॉल्वेंट चाहिए। इफ हम सॉल्यूशन में सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो हम अब मास कैलकुलेट करेंगे किसका, सोल्यूट का। और इस सॉल्यूशन में सोल्यूट कौन है, NaCl ना, सॉल्यूशन में सोल्यूट कौन है, NaCl। सो मास ऑफ NaCl, तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल से। मोल से जब भी बाहर आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मोलर मास से। मोल कितने हमारे पास 3 इनटू मोलर मास। मोलर मास ऑफ NaCl कैलकुलेट करिए ना, Na का कितना होता है 23, Cl का 35.5। ओके, ऐड कर दिए 5 8 58.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 175.5। ये किसका मास आ गया आपके पास, NaCl। अब आपको मास किसका चाहिए, मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा 1250 माइनस 175.5। ओके, तो आप इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 0.54 ना। सेवन 1074.5। तो ये आपका मास आ गया सॉल्वेंट का। ओके, बट आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें चाहिए, केजी में चाहिए, तो आप इसमें क्या करेंगे 1000 का डिवाइड करेंगे, तो केजी में क्या हो जाएगा 1.0745 केजी। समझे बच्चों। अब हम मोलैरिटी का सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 3 divided by mass of solvent in kg that is 1.0745। आप सोल्व कर लीजिए ना, आंसर आ जाएगा यूनिट, इधर आप स्मॉल m लिख सकते हैं या फिर मोल पर केजी। यहां पे आपको सोल्व करके आंसर लिखना है, सिंपल है, 3 में डिवाइड करके 1.0745। सो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये मैंने पहले भी बताया, ये क्या हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का फंडामेंटल है, ये एक टाइप से बेसिक है। इफ आपको ये नहीं समझ आएगा तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस चैप्टर को इफ आपको नहीं समझ आए तो एक बार वापस देखिए पूरा चैप्टर। और इस चैप्टर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जितनी ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही समझ आएगा। डेफिनेशन याद करने का कोई फायदा नहीं है। इफ मेरे से कोई पूछता है मोल फ्रैक्शन क्या है, तो भले मुझे ना, बट इफ मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, आपको केमिस्ट्री में याद होना जरूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। इफ मेरे से कोई मोलैरिटी पूछे ना, तो डेफिनेशन बताना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इफ आपके पास क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए, तो आप उस सॉल्यूशन की, आपको कोई सॉल्यूशन गिवन है तो आप उसकी मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, अप्लाई करना आना चाहिए। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.